My lovely students, welcome to Logical. In this session, we'll be discussing some previous year questions from HGMT examination. We've already discussed questions from 2025 and 2024 from quantitative aptitude section of HGMT. So we'll be discussing some more questions from previous years. These will not be the same questions क्योंकि already जो discuss कर लिया है उसके लिए तुम्हें link description में मिल जाएगा, playlist में जाके एक बार चेकआउट कर लेना. So we'll be discussing some fresh questions from previous years. Start करते हैं session को, and if you've not already subscribed to the channel, make sure to subscribe to the channel और साथ में also press the bell icon. You can also join Telegram channel Methodological or can message me on Telegram at ADITYAKT. So first question. Bipin is 6 times as old as Alok. Bipin's age will be twice of Chandan's age after 10 years if Chandan's 7th birthday was celebrated 3 years ago. So what is Alok's present age? Pause the video and try to solve it. Bipin का एज क्या है? 6 times as that of Alok. तो आलोक का एज अगर हम x एज्यूम कर लेते हैं, so in case of Bipin, age will be 6 times of that, 6x हो जाएगा. And Bipin's age will be twice of Chandan's age after 10 years. तो at present तो age Bipin का 6x है, but after 10 years age will be 6x plus 10. And after 10 years, Bipin's age will be twice of Chandan's age. So this will be twice of Chandan's age. And hence, Chandan का age क्या हो जाएगा? 6x plus 10 by 2, which will be equal to 3x plus 5. And that is after 10 years. तो present age of Chandan क्या होगा? Subtract 10 from here. So 3x plus 5 minus 10, this will be 3x minus 5. So Chandan's age at present will be 3x minus 5. And information given is also that Chandan's 7th birthday was celebrated 3 years ago. Chandan was 7 years 3 years ago. So at present, Chandan will be equal to 7 plus 3, 10 years. So 3x minus 5 is equal to 10. So 3x is equal to 15. X will be equal to 5. Alok's present age will be equal to 5 years. Option A will be the answer. Simple question. Okay. Next question. We define a function f on the integers where fx is equal to x upon 10 if x is divisible by 10 and fx is equal to x plus 1 if x is not divisible by 10. तो अगर x divisible by 10 होगा तो x by 10 करोगे तो भी इंटीजर ही आएगा. And a0 is equal to 1994 and an plus 1 is equal to f of an. So what is the smallest n such that an will be equal to 2? That is the question. So a0 given है, a0 से start करते हैं. So a1 will be equal to n plus 1. So a1 will be equal to f of a0. Because if you put n is equal to 0 in this, a1 will be equal to f of a0. ठीक है. So f of a0 क्या हो जाएगा? Since a0 is 1994, तो f of 1994 and 1994 is not divisible by 10. So add हो जाएगा 1. So f of 1994 will be nothing but 1995. Okay. Then a2 will be equal to f of a1. So f of 1995. Again 1995 is not a multiple of 10. 1 add कर दोगे तो 1996. सिमिलरली कहानी चलती रहेगी कब तक? तब तक जब तक कि हमारा x डिविजिबल बाई 10 नहीं हो जाता है. यानी कि a3 विल बी 1997. बस 1 ऐड करना है. a4 विल बी 1998. a5 1999 एंड फाइनली a6 विल बी इक्वल टू 2000. अब जैसे ही a6 पहुंचे, नाउ दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 10. सो a7 विल बी f of 2000, but now 2000 is a multiple of 10. So divide by 10 करेंगे. So this will be equal to 200. 200 is also a multiple of 10. So a8 will be 200 by 10. And hence 20. 20 is also a multiple of 10. So a9 will be 20 by 10, which is equal to 2. So an is equal to 2 के लिए first value n का क्या मिला? n is equal to 9. Smallest value of n will be equal to 9. Option A will be the answer. Okay. ठीक है. अब इसके बाद फिर से कहानी बढ़ना शुरू होगा. 2 से 3 पे जाएगा. a10 will be equal to 3, a11 will be equal to 4, a12 will be equal to 5 and so on. फिर 10 पे पहुंचेगा और फिर 10 से 1 पे आएगा. फिर 1 से 2 पे जाएगा. तो नेक्स्ट वैल्यू कौन सा होगा? कमेंट में मेंशन करना कि नेक्स्ट वैल्यू ऑफ एन क्या होगा. ठीक है. नेक्स्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर विच एन इज इक्वल टू 2. और उसके बाद ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा. यह फंक्शन हमारा साइक्लिक हो जाएगा क्योंकि फिर 10 से ऊपर बढ़ ही नहीं पाएगा. जैसे ही 10 में पहुंचेगा फिर 1 पे आ जाएगा और 1 से 10 तक कहानी ऐसे ही चलती रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A 14.4 kilogram gas cylinder runs for 104 hours when the smaller burner on the gas stove is fully opened, while it runs for 80 hours when the larger burner on the gas stove is fully opened. Which of these values are closest to the percentage difference in the uses of gas per hour of the smaller burner over the larger burner? So there are two burners, smaller burner and the larger burner, and time taken for the gas to last
इज 104 आवर्स फॉर द स्मॉलर बर्नर, क्योंकि फ्यूल कम कंज्यूम हो रहा है इन केस ऑफ स्मॉलर बर्नर, और लार्जर बर्नर में टाइम टू लास्ट इज 80 आवर्स ओनली, बिकॉज ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, सो टाइम हमारा, टाइम का रेशियो आ रहा है 104:80, तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा, कंजम्पशन पर यूनिट टाइम, दैट विल बी जस्ट अपोजिट, यानी कि 80:104। ठीक, कंजम्पशन पर यूनिट टाइम दैट विल बी 80:104। ठीक है, यूजेज ऑफ गैस पर आवर, सो क्या रेशियो आ गया हमारा 20:26 और 10:13। So smaller burner is consuming 10 units gas per hour, while bigger burner is consuming 13 units of gas per hour. Bigger or larger burner 13 units per hour. Question हमसे पूछ रहा है कि which of the following is the percentage difference in uses of gas per hour of the smaller burner over the larger burner, यानी कि बेस हमारा क्या है, बेस है larger burner, तो larger से smaller कितना कम कंज्यूम कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो बेस इज 13, इफ 13 यूनिट्स इज द कंजम्पशन ऑफ लार्जर बर्नर, तो 10 यूनिट्स हमारा स्मॉलर बर्नर का है कि 3 लेसर है। 3/13 in terms of percentage, 3/13 into 100 will be the answer. 300/13, which will be roughly 13 2s are 26, 23%. Option A will be the answer. 23 and 1/13, तो 23.07%, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑपोजिट पूछता कि लार्जर बर्नर ओवर द स्मॉलर बर्नर, तो आंसर 30% होता, बिकॉज 3 ऑन द बेस 10, 3/10, 30%. Next question. In the figure, if d is the diameter of the larger circle and small d is the diameter of the smaller circle, then capital D plus small d का वैल्यू क्या होगा? Value of capital D plus small d. Now this is a right angle triangle, क्योंकि कैपिटल डी हमारा क्या है, डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल है, डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल। सो दिस इज सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में बनने वाला ट्रायंगल हमेशा एक राइट एंगल होगा, बिकॉज सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल इज ऑलवेज अ राइट एंगल, सर्कमफ्रेंस में बन रहा है तो। ठीक है, सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज कैपिटल डी इज द डायमीटर। So in the right angle triangle, one side is A, other side is B, and hypotenuse is equal to capital D. So value of capital D will be equal to root of A square plus B square, because hypotenuse है. Additionally, the circle inside is the in circle. This is in circle of right angle triangle. और in circle का radius for a right angle triangle, अगर radius small r मान लें, तो small r is equal to side lengths of perpendicular and base minus side length of hypotenuse, this divided by 2. This is equal to in radius. In radius is equal to sum of side lengths of perpendicular and base minus side length of hypotenuse divided by 2. So a plus b minus d by 2, and hence 2r will be equal to a plus b minus capital D, or 2r will be diameter of in circle, so this is equal to small d. So small d is equal to a plus b minus capital D, so small d plus capital D will be equal to a plus b. खत्म, टाटा बाय बाय। तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर, ऑप्शन ए प्लस बी विल बी द आंसर, कि स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी विल इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर है बात? ठीक है, सो ये तो एक अप्रोच हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए कि इन रेडियस का फॉर्मूला फॉर राइट एंगल ट्रायंगल सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में है, बाकी ट्रायंगल्स में नहीं अप्लाई होगा। बाकी ट्रायंगल्स के लिए क्या कहेंगे कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू इन रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर, और कैपिटल आर चाहिए, सरकम रेडियस चाहिए, तो कैपिटल आर के लिए क्या कहेंगे, एरिया इज ऑल्सो इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी डिवाइड बाई 4 टाइम्स कैपिटल आर, फिर ए बी सी आर लेंथ ऑफ द साइड्स। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे स्मॉल आर हमारा इन रेडियस क्या है राइट एंगल ट्रायंगल में, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइट नहीं माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई 2, एंड कैपिटल आर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई 2। ओके, क्योंकि द लार्जेस्ट सर्कल कैपिटल डी क्या है हमारा, दिस इज इक्वल टू टाइम्स कैपिटल आर, बिकॉज लार्जेस्ट सर्कल हमारा सर्कम सर्कल है। ठीक है, ओके, एक अप्रोच हो गया। अब एक और ऑब्जर्वेशन करते हैं यहाँ पे, बिकॉज इफ वी ऑब्जर्व देर आर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पॉइंट, इस पॉइंट को मान लेते हैं, दिस इज कैपिटल ए, दिस पॉइंट इज कैपिटल बी, एंड दिस पॉइंट हियर दिस इज कैपिटल सी। सो these two are tangents on a circle from same point, और सेम पॉइंट से दो टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे तो लेंथ सेम होगा, यानी कि लेंथ ऑफ दीज टू टेंजेंट्स विल बी सेम। सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट सी देयर आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन, टेंजेंट्स ही तो है, तो इनका लेंथ भी इक्वल होगा। इजंट इट सो? क्या क्लियर है?
तो यही कहानी बी से भी हो रही है, बी से भी 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही है हमारी. So if we assume कि small r is the radius of in circle, so this will be equal to small r. And since ये radius है, this is tangent, perpendicular होगा. Similarly, this will also be small r. So this portion here, this is basically a square with side length equal to r. This is also r. ये भी r होगा और ये भी r हो जाएगा. So this length here, this will be equal to small b total length था, तो b minus r. And since this is b minus r, ये दोनों equal है, so this will also be b minus r. Similarly, this length equal, this length here will be पूरा a था, a minus r, this will be equal to a minus r. और क्योंकि ये a से हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किया है, तो this will also be equal to a minus r. And hence a minus r plus b minus r, this is equal to 2 times capital R और capital D instead. capital D, तो a plus b minus 2r is equal to capital D. और 2r हमारा क्या हो जाएगा? 2r will be equal to diameter of the smaller circle. So a plus b minus small d is equal to capital D. And hence a plus b will be equal to capital D plus small d. Okay. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्या ये मेथड समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन. When I bought some pens for rupees 540, he lost 2 pens. Then he sold each of the remaining pens at rupees 6 more than the cost price. On the whole transaction, Vinay gained 10% of his outlay. So how many pens did Vinay buy? Vinay ने कितने pens purchase किए होंगे? Bought some pens for rupees 540, lost 2 pens. Then he sold each of the remaining pens at rupees 6 more than the cost price. On the whole transaction, Vinay gained 10% on his outlay. So how many pens did Vinay buy? रुपीज़ 540 में परचेज किए. ऑप्शन हमें क्या दिए? कितने पेन्स परचेज किए थे इनिशियली? 18, 20, 22, 24. रुपीज़ 6 से सेलिंग प्राइस इंक्रीज किया और प्रॉफिट हो रहा है 10% का. तो 540 वॉज कॉस्ट, प्रॉफिट है 10% यानी प्लस 54. तो 594 इज टोटल सेल्स और टोटल रेवेन्यू जनरेटेड. बट अगर पी पेन्स परचेज किए होंगे तो कितने सेल किए? पी माइनस 2, बिकॉज 2 पेन्स ही लॉस्ट, है कि नहीं? 2 पेन कम उसने सेल किए हैं. ठीक है, एक बेस्ट अप्रोच ऐसे क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग इक्वेशंस डायरेक्टली ऑप्शंस का यूज कर लो, क्योंकि ऑप्शंस तो हमें गिवन है. ठीक है, 18 परचेज किए होंगे, 20 या 22 या फिर 24. और 22 भी यहाँ पे, क्योंकि 22 से डिवाइड करोगे 540 को, तो 540 मल्टीपल तो है नहीं 22 का, तो 22 के आंसर होने के चांसेस बहुत मिनिमल है, क्योंकि हमारा जो वैल्यू आएगा पर पेन कॉस्ट वो इंटीजर नहीं आएगा. सिमिलरली फॉर 24, क्योंकि वहां से भी वैल्यू इंटीजर नहीं आएगा. तो सबसे पहले 18, 20 में से इन दोनों ऑप्शंस को ट्राई करोगे और इनमें से कोई ऑप्शन फिट हो जाएगा तो काम खत्म, तो हमारा वैसे ही हो गया, तो इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शंस का यूज करो. फॉर एग्जाम्पल हमने 18 को लिया, तो इफ 18 पेन्स इज परचेज्ड तो कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस विल बी रुपीज 30. एंड इफ 20 पेन्स ही परचेज्ड तो कॉस्ट प्राइस पर पेन विल बी 540 बाई 20 रुपीज 27. और फिर रुपीज 6 उसने कॉस्ट प्राइस बढ़ाया है, तो सॉरी सेल्स प्राइस बढ़ाने के लिए क्या किया? कॉस्ट प्राइस में रुपीज 6 ऐड किया है. तो रुपीज 36 विल बी सेलिंग प्राइस इन द फर्स्ट केस, और सेकंड केस में हो जाएगा रुपीज 33. ठीक है, अब वैसे भी देखो 100% हमारा वैसे भी कॉस्ट था इनिशियली, तुमने 10% उसमें ऐड किया, तो 100 प्लस 10%, नाउ दिस इज 110%, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 11. 11 का मल्टीपल है. ठीक है, तो 11 का मल्टीपल आ रहा है 33 यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो वैल्यू था, नंबर ऑफ पेन्स 20 थे, 2 कम हो गए तो 18 हो गए. तो 18 तो हमारा 11 का मल्टीपल नहीं है, और क्योंकि अल्टीमेट 110% यानी कि 594 हमारा मल्टीपल ऑफ 11 है. तो हमें चाहिए एक नंबर जो कि 11 का मल्टीपल हो, तो या तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स हमारे जो बच गए P-2 क्योंकि सेल कर रहे हैं, या तो वो मल्टीपल ऑफ 11 हो, अदरवाइज जो हमारा सेलिंग प्राइस है दैट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 11. क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो छोटी छोटी बातें जिनको ऑब्जर्व करोगे तो मैं कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और क्लियरली दिख जाएगा कि दिस मस्ट बी द आंसर, क्योंकि यहाँ पे रुपीज 33 आ रहा है, और 33 इंटू 18 करोगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 594. 33 इंटू 20 विल बी 660 माइनस 66, दैट विल बी इक्वल टू 594. तो वैल्यू मैच कर रहा है, ऑप्शन बी विल बी द आंसर. कुछ भी और करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है. क्या है क्लियर है कि डायरेक्टली हमने ऑप्शंस को यूज किया और सॉल्व कर लिया अपने क्वेश्चन को. ठीक है, अब प्रॉपरली कन्वेंशनली सॉल्व कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं. कि इनिशियली हमारे पास अगर एन पेन्स थे, पी पेन्स मान लेते हैं, चलो पी मान लिए, और प्राइस हमारा मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स, तो पी इंटू एक्स इज इक्वल टू 540. देन ही सोल्ड 2 लेसर पेन्स P-2 एंड सेलिंग प्राइस इज एक्स प्लस 6, दिस इज 594. ठीक है, एक्सपैंड कर दो तो पी एक्स प्लस 6P माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 594. P x इज 540, पुट कर दो वैल्यू और राइट हैंड साइड में लेके जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 6P
minus 2x minus 12, this is equal to 594 minus 540, which is equal to 54. So 6p minus 2x is equal to 66, and hence 3p minus x is equal to 33. So 3p is equal to x plus 33. ओके, अब हमें अल्टीमेटली आंसर क्या निकालना है? आंसर निकालना है नंबर ऑफ पेन्स ही परचेज, यानी पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे या तो फिर एक्स में कन्वर्ट कर दें, 3p माइनस 33 लिख दें एक्स को, ये कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू पी माइनस 11, पुट दिस इन द ओरिजिनल इक्वेशन, यानी पी एक्स इक्वल 540 में। तो पी एक्स को हमने रख दिया 3 इंटू पी माइनस 11। सो पी इंटू 3 इंटू पी माइनस 11 इज इक्वल टू 540। तो पी इंटू पी माइनस 11 दिस इज इक्वल टू 180। देखिए दो नंबर है जिनके बीच में 11 का गैप है और उनका प्रोडक्ट हमारा आ रहा है 180। ठीक है, सो क्या नंबर्स हो सकते हैं? 9 एंड 20। देखिए पी हमारा विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, नंबर ऑफ पेन्स है तो पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, 9 20, पहला वैल्यू 20 आएगा, बाद में 9 आएगा, बिकॉज बाद में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 20 इंटू 9, एंड हेंस पी मस्ट बी इक्वल टू 20। ठीक है, सेकंड केस क्या बन सकता था हमारा यहाँ पे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन रहा है तो हमेशा याद रखना कि जब भी हमारा ये 20 इंटू 9 आया तो ऐसे माइनस 20 इंटू माइनस 9 भी आएगा, यानी कि माइनस 9 इंटू माइनस 20। दिस विल ऑल्सो बी द सोल्यूशन, यानी कि पी विल बी इक्वल टू 20 और माइनस 9। बट क्योंकि हमारे लिए इस केस में पी इज क्वांटिटी, क्वांटिटी निगेटिव में तो हो नहीं सकता, तो 20 ही होना है, इसलिए सेकंड को लिखने की जरूरत एज सच नहीं है। बट क्वाड्रेटिक है तो हमेशा याद रखना है, क्योंकि किसी और केस में अगर इंटीग्रल सॉल्यूशंस होता तो वहाँ पे सेकंड वैल्यू भी चाहिए होता हमको, अदरवाइज फिर पूरा इक्वेशन सॉल्व करते, क्वाड्रेटिक बनाते पी स्क्वायर माइनस 11p माइनस 180 और फिर सॉल्व करते, उसके बाद में आंसर्स नोट डाउन करते। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A and B started a business with a total capital of rupees 30,000. At the end of the year, they shared the profit in the ratio of their investments. If their capitals were interchanged, then A would have received 175% more than what he actually received. To find out the capital of B. अगर A और B का हम कैपिटल इंटरचेंज करते हैं तो A को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 175% ज़्यादा मिलेगा। 175% इज बेसिकली 7/4, 175/100 यानी कि 7/4। तो अगर अभी प्रॉफिट मिल रहा है A को 7 का 7, तो ही विल बी गेटिंग 4 मिल रहा है अगर अभी प्रॉफिट, तो 7 ज़्यादा मिलेगा, यानी 4 से 7 ज़्यादा मिलेगा। सो इनिशियली इफ A का इन्वेस्टमेंट है 4, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट होता है उतना ही उसको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। तो अगर अभी इन्वेस्टमेंट A का 4 है तो आफ्टर एक्सचेंज A का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? 4 + 7 11 हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि B का इन्वेस्टमेंट 11 रहा होगा अभी एट प्रेजेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अगर हमारा जो भी होगा उसमें A का इन्वेस्टमेंट 4 यूनिट्स है तो B का इन्वेस्टमेंट मस्ट बी 11 यूनिट्स, यानी कि टोटल 4 + 11 इज 15, और 15 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है? 30,000। टोटल कैपिटल हमारा 30,000 है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2,000। तो बी का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 11 इंटू 2,000 विच इज इक्वल टू 22,000। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC, एंगल B इज अ राइट एंगल, AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो लेंथ ऑफ BD क्या होगा? लेंथ ऑफ BD क्या होगा? D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, so AD is equal to CD. And in case of a right angle triangle, hypotenuse divided by 2, this is equal to circumradius. ठीक है, अब अगर सर्कल ड्रॉ करोगे, बना तो नहीं सर्कल पर समझ जाओ कि सर्कल ही है। ठीक है, तो अगर सर्कल ड्रॉ करोगे, सो दिस पॉइंट D, मिड पॉइंट ऑफ AC, दिस विल बी सर्कम सेंटर। तो BD भी तो हमारा रेडियस ही है, दिस इज ऑल्सो रेडियस। ठीक है, AD भी रेडियस है, CD भी रेडियस है और BD भी रेडियस है। So BD will also be equal to hypotenuse divided by 2, which is equal to 3 centimeter. Option B will be the answer. Okay, so in a right angle triangle, any right angle triangle whatsoever, if we connect midpoint of the hypotenuse with the third vertex, so that is also equal to h/2, because that is also circumradius. Okay, next question. In an examination, 49% candidates failed in English and 36% failed in Hindi and 15% failed in both the subjects. If the total number of candidates who passed in English alone is 630, so what is the total number of candidates appeared in examination? 49% फेल हुए इंग्लिश में, तो इंग्लिश फेल आर 49%, मान लेते 49 यूनिट्स है।
सिमिलरली फेल्ड इन हिंदी दे आर 36%, मान लिया 36 यूनिट्स है. एंड देन दोज हु फेल्ड इन बोथ आर 15%, यानी 15 यूनिट्स फेल्ड इन बोथ. 15 फेल्ड इन बोथ, टोटल 49 है इंग्लिश में, 49 माइनस 15 विल बी इक्वल टू 34. सिमिलरली हिंदी में फेल्ड है 36, 36 माइनस 15 विल बी 21. और क्वेश्चन ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड इन इंग्लिश अलोन इज 630. तो कौन से ऐसे होंगे जो सिर्फ इंग्लिश में पास किए होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे फेल का डायग्राम बनाया है, ध्यान रखना. ठीक है, हमने डायग्राम फेल का बनाया है, तो थिंक अबाउट इट, कौन सा पोर्शन ऐसा होगा विच विल बी रिप्रेजेंटिंग कैंडिडेट्स हु पास इन इंग्लिश अलोन, क्योंकि एक हमारा इसके बाहर भी तो है पूरा रीजन, है कि नहीं. और बाहर रीजन क्या शो कर रहा है, दोज हु फेल्ड इन नीदर ऑफ द सब्जेक्ट्स, यानी कि पास इन बोथ. जो बाहर वाला रीजन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग पास इन बोथ. हमें पास इन बोथ नहीं चाहिए. पास इन बोथ क्या होगा, अगर पास इन बोथ चाहिए होता तो क्या होता, क्योंकि ये वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, दिस इज 49 प्लस 21 यानी कि 70 आ रहा है. तो 70% फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट. कम से कम एक में फेल हुए हैं कितने, 70%. ठीक है, 49 प्लस 21 देख लो या 36 प्लस 34 देख लो, 70% फेल्ड इन एटलीस्ट वन, यानी 30% पास इन बोथ. बट हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में 30% से कंसर्न नहीं था. कंसर्न हमारा है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास इन इंग्लिश अलोन इज 630. तो इंग्लिश अलोन में पास करने वाले कितने होंगे, यानी कि इंग्लिश में जो पास किए हैं सिर्फ, वो हिंदी में फेल हुए हैं. तो दोज हु फेल्ड इन हिंदी बट पास इन इंग्लिश, यानी कि आउटसाइड बोथ फेल वाला केस और फेल्ड इन हिंदी, यानी कि दिस पोर्शन वी आर कंसर्न अबाउट विच इज इक्वल टू 21 यूनिट्स. तो 21 यूनिट्स हियर, दिस इज इक्वल टू 630. ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स हु पास इन इंग्लिश अलोन. तो 20 यूनिट्स की वैल्यू है 630, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 30. और फिर क्वेश्चन पूछा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विच इज इक्वल टू 100 यूनिट्स. तो 100 इंटू 30 विल बी इक्वल टू 3000. टोटल नंबर स्टूडेंट्स हमारे 3000 हो जाएंगे. फिर क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेता तो आंसर कर पाते कि पास्ड इन बोथ विल बी 13 to 30 900. पास्ड इन इंग्लिश सॉरी पास्ड इन इंग्लिश अलोन तो देख लिया. पास्ड इन हिंदी अलोन दैट विल 34 यूनिट्स, 34 इंटू 30 1020 एंड सो ऑन. जो भी इन्फॉर्मेशन मांगता है उस हिसाब से हम आंसर कर पाते. ये तो हो गया कि हमने फेल्ड का डायग्राम बनाया तो ऐसे देखा. ठीक है, पास्ट का डायग्राम बनाते तो भी कर सकते थे. क्या पता है कि अगर 49% इंग्लिश में फेल हुए हैं तो दैट ऑल्सो इंप्लाइज कि बचे हुए पास हुए होंगे इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश पास मस्ट हैव बीन 100% माइनस 49% यानी 51%. Similarly, Hindi past must have been 64%. है कि नहीं. ठीक है, तो ऐसा डायग्राम बना सकते थे कि इंग्लिश पास 51%, हिंदी पास्ट 64%, 51 हिंदी पास 64, एंड देन 15% फेल्ड इन बोथ. जो फेल किए हैं उतना तो इंग्लिश पास में आएंगे ना हिंदी पास में आएंगे, तो 15 आउटसाइड आ जाएगा. और अगर 15 आउटसाइड आया है तो ये पोर्शन हमारा क्या होगा, दिस पोर्शन यानी कि इंग्लिश यूनियन हिंदी, दिस विल बी 85%. 85 टोटल आ गया, जबकि इंग्लिश में हमारा 51 है. ठीक है, या फिर हिंदी में हमारा 64 है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इंग्लिश अलोन के लिए वैल्यू निकालना है. तो हिंदी वाले 64 है टोटल, और टोटल हमारा 85 है. 85 माइनस 64 विल बी दिस वैल्यू ओनली इंग्लिश विच इज इक्वल 21. 21%, 21% हमारा 630 है, तो 100% हमारा 3000 हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Let a be a prime number and b be a composite number such that a plus b is equal to 240. Also, the LCM of a and b is 4190. तो find the value of a and b respectively. a और b का वैल्यू क्या होगा, a और b का सम है 240 और a हमारा एक प्राइम नंबर है. एंड LCM ऑफ a and b दैट इज 4199. ओके, सो ऑप्शन से भी जा सकते हैं. ऑप्शन हमारे 23, 19, 17, 13 एंड सो ऑन. ठीक है, LCM हमारा a और b का आ रहा है 4199. अच्छा, a प्लस b हमारा 240 है जो कि मल्टीपल ऑफ 3 है. क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि b एक कॉम्पोजिट नंबर है, a एक प्राइम नंबर है. ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि b एक कॉम्पोजिट नंबर है जो b मल्टीपल ऑफ a हो. कैन दिस बी पॉसिबल, थिंक अबाउट इट. क्या b मल्टीपल ऑफ a हो सकता है, क्योंकि अगर b मल्टीपल ऑफ a होगा, मान लेते हैं कि इफ लेट अस से b इज इक्वल टू a इंटू के. ठीक है, तो सम हमारा a प्लस b क्या हो जाएगा, a प्लस a इंटू के. दिस विल बी a कॉमन आ जाएगा, a इंटू 1 प्लस के दैट इज इक्वल टू 240. और a तो एक प्राइम नंबर है, यानी कि 240 हमारा a का मल्टीपल हो जाएगा इस केस में. और 240 तो सिर्फ और सिर्फ 3 और 2 का ही मल्टीपल है और 5 का. तब ए हमारा 3 to 5 में से कोई एक होना पड़ेगा, वो तो ऑप्शन में दिया भी नहीं है. लेकिन डेफिनेटली जो कंपोजिट नंबर है दैट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर, इजंट इट सो. और अगर कंपोजिट नंबर हमारा प्राइम नंबर का मल्टीपल नहीं है तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी मस्ट बी इक्वल टू ए इंटू बी. दिस मस्ट बी इक्वल टू ए इंटू बी.
क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो कि एलसीएम ए इंटू बी का जो ए और बी का जो होगा दैट मस्ट बी ए इंटू बी, बिकॉज ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इजंट इट सो? अगर कॉमन फैक्टर होता तब उस केस में एलसीएम हमारा ए और बी का क्या होता, बी ही होता, क्योंकि ए तो प्राइम नंबर है। अगर बी ए का मल्टीपल होता, लेट अस से बी इक्वल टू ए के होता, तो एलसीएम ऑफ ए एंड ए के वुड हैव बीन इक्वल टू ए के ओनली, यानी एलसीएम उस केस में बी होता। ठीक है, पर क्योंकि हमारा डेफिनेटली एलसीएम आ रहा है 4199, तो यहां से भी बात क्लियर है कि एलसीएम अगर हमारा ए और बी का आना है और बी हमारा ए का मल्टीपल नहीं हो सकता है, बिकॉज इन दैट केस हमारा एलसीएम बी ही होता, और एलसीएम तो बी है नहीं, बिकॉज ए प्लस बी 240 है, और जबकि हमारा जो एलसीएम है दैट इज 4199 विच इज मच मच लार्जर देन 240। तो क्लियर सी बात है कि दिस इज ए इंटू बी, तो ए इंटू बी 4199 है और ए प्लस बी हमारा 240 है, तो हमें ऑप्शन गिवन है, डायरेक्टली यूज करो। ठीक है, यूनिट 8 9 आ रहा है, तो 3 इंटू 7 1 आएगा, नहीं हो सकता। 9 इंटू 1 9 आएगा, हो सकता है। 7 इंटू 3 1 आएगा, नहीं हो सकता। 3 इंटू 7 1 आएगा, नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी मस्ट बी द आंसर। अदरवाइज फैक्टराइज भी कर सकते थे 4199 को, बट क्या ही बातें समझ पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे ऑप्शंस को यूज करके हम सॉल्व कर सकते थे। ओके, बाकी चेक करना है तो 19 को 22 टू 21 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 221 इंटू 2 क्या आएगा, दैट विल 2210, तो 2210 माइनस 221, तो दैट विल 2010 माइनस 21, तो यस 4, एक सेकेंड 2210 माइनस 221, कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? ठीक है, 210 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 11 आएगा 2000। ओह 2210 क्यों कर रहे हैं, इंटू 20 करना था, क्या हो जाता है 4420 माइनस 221 करेंगे तो ये 4199 आ जाएगा। ठीक है, ओके, ऐसे कैलकुलेशन करेंगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वंस आई हैड बीन टू द पोस्ट ऑफिस टू बाय 5 रुपी 2 रुपी एंड 1 रुपी स्टैम्प्स, आई पेड द क्लर्क ₹20 एंड सिंस ही हैड नो चेंज ही गेव मी 3 मोर 1 रुपी स्टैम्प्स। तो ऑलरेडी कुछ परचेज किया, बट उसके बाद में क्योंकि चेंज नहीं थे क्लर्क के पास में, तो क्लर्क गेव 3 मोर स्टैम्प्स। इफ द नंबर ऑफ स्टैम्प्स ऑफ ईच टाइप दैट आई हैड ऑर्डर्ड इनिशियली वॉज मोर देन 1, what was the total number of stamps that I bought in total? Okay, ₹20 टोटल गिवन था। क्लर्क गेव एडिशनली 3 1 रुपी स्टैम्प, तो ये तो हो जाएंगे 3 रुपीज का, यानी कि 17 रुपीज का पहले ही परचेज कर लिया था। और कंडीशन ये है कि दैट नंबर ऑफ स्टैम्प्स ऑफ ईच टाइप दैट आई हैड ऑर्डर्ड इनिशियली, यानी कि 17 रुपीज से वॉज मोर देन 1 फॉर ईच केस, फॉर ईच स्टैम्प। तो 17 रुपीज को हमें 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कुछ होंगे 1 रुपी स्टैम्प्स, some will be 2 रुपी स्टैम्प्स एंड some will be 5 रुपी स्टैम्प्स, एंड ईच वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो 1 से बड़ा होगा यानी मिनिमम 2 होगा, तो मिनिमम 2 तो दे ही दो सब में। कितना आ गया, दिस विल बी 2 रुपीज, दिस विल बी 4 रुपीज, दिस विल बी 10 रुपीज। टोटल हो गया 10 प्लस 4 प्लस 2 यानी 16 रुपीज तो ऑलरेडी हो गया, और क्योंकि 17 टोटल है यानी कि 1 रुपी का एक और स्टैम्प होगा। ठीक है, तो बेसिकली 1 रुपी के 3 स्टैम्प्स होंगे इनिशियली, 2 रुपी के 2 स्टैम्प्स होंगे, और 5 रुपी के भी 2 स्टैम्प्स होंगे। बट ये इनिशियल कहानी है, बाद में 2 स्टैम्प्स उसने 3 स्टैम्प्स उसने एक्स्ट्रा भी तो दिए हैं, तो इनको भी ऐड करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स विल बी 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 10। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। लेकिन इन टोटल 6 स्टैम्प्स ऑफ ₹1, 2 ऑफ ₹2 एंड 2 ऑफ ₹5, टोटल विल बी इक्वल टू 10। ओके, बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 5-digit numbers can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5 without repetition such that the number is divisible by 3? तो 6 डिजिट्स हमें गिवन है, विदाउट रिपीटेशन हमें चाहिए नंबर्स बनाने 5 डिजिट के, सच दैट जो नंबर हो हमारा दैट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। नंबर कब होता है डिविजिबल बाई 3? जबकि सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। अभी हमारे पास 6 डिजिट्स हैं, टोटल सम क्या आ रहा है इनका 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, सम आ रहा है 15। एक डिजिट हमें रिमूव करनी पड़ेगी क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ 5 डिजिट्स, अभी 6 है, तो एक डिजिट हमें रिमूव करना है, और ऐसे रिमूव करना है सच दैट उसके बाद भी हमारा सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। ऑलरेडी डिविजिबल बाई 3 है, तो जो डिजिट हम रिमूव करने वाले हैं दैट मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 3, तभी तो ऐसा होगा। तो या तो 15 में से 0 रिमूव कर दो, सम ऑफ डिजिट्स हमारा 15 आ जाएगा, या फिर 3 रिमूव कर दो, सम ऑफ डिजिट्स विल बी 12। दो केसेस होंगे। ठीक है, तो 0 रिमूव कर दिया तो क्या क्या डिजिट्स बचेगा हमारा 1 2 3 4 5,
3 रिमूव कर दोगे तो बचेगा 0 1 2 4 5। दो केसेस है, दोनों में हमें नंबर्स बनाने हैं। और अगर थोड़े भी क्वेश्चन सॉल्व किए तो पता होगा जब 0 आता है तो प्रॉब्लम होता है हमें। क्यों प्रॉब्लम होता है? बिकॉज 0 फर्स्ट प्लेस पे रख दोगे तो 5 डिजिट का नंबर बनेगा नहीं। अगर नंबर हमारा 0 से स्टार्ट हो गया तो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, 5 डिजिट रहेगा नहीं। तो बस ये कॉशियस रहना पड़ेगा हमें, जहां पे 0 होगा, जहां 0 नहीं है वहां पे तो चीजें आसान है। 1 2 3 4 5 को हमें अरेंज करना है, 5 फैक्टोरियल बेस होंगे स्ट्रेट अवे, विच इज इक्वल टू 120 नंबर्स बनेंगे। बट 0 1 2 4 5 है, यहाँ पे स्टार्ट में फर्स्ट प्लेस पे, लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 0 नहीं रखेंगे, तो 5 में से 4 ही ऑप्शन अवेलेबल है। इसके बाद में अब एक डिजिट फिलअप हो गया है, 4 डिजिट्स बचेंगे, ठीक है। तो 4 देन 3 देन 2 देन 1, तो 4 into 4 फैक्टोरियल, दिस विल बी इक्वल टू 96 नंबर्स फ्रॉम 0 1 2 4 5। तो 120 प्लस 96 आंसर आ जाएगा हमारा 216। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A watch dealer incurs an expense of rupees 150 for producing every watch. He also incurs an additional expenditure of rupees 30,000, which is independent of the number of watches produced. If he is able to sell a watch during the season, he sells it for rupees 250. If he fails to do so, he has to sell each watch for rupees 100. अब इस सेट पे बेस्ड दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, दोनों को सॉल्व करना है। सो कंडीशन क्या है कि वॉच डीलर इनकर्स एन एक्सपेंस ऑफ रुपीज 150 फॉर प्रोड्यूसिंग एवरी वॉच। तो कॉस्ट एक हमारा है वो रुपीज 150 फॉर एवरी वॉच। ऑल्सो इनकर्स एन एडिशनल एक्सपेंस ऑफ रुपीज 30,000। तो 30,000 हमारा क्या है? विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ वॉचेस प्रोड्यूस्ड। देखिए दिस इज 30,000 हमारा, दिस इज फिक्स कॉस्ट, ये तो लगना ही लगना है, एक भी वॉच नहीं प्रोड्यूस होगा तब भी लगेगा। और ये जो रुपीज 150 है, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट हमारा हमेशा पर वॉच होता है या पर आइटम होगा। तो इन टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट टीसी विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट विच इज 30,000 प्लस 150 पर वॉच, तो नंबर ऑफ वॉचेस अगर W है तो प्लस 150 W, दिस विल बी आवर टोटल कॉस्ट। इफ ही इज एबल टू सेल अ वॉच ड्यूरिंग द सीजन, तो सीजन में वॉच कैन बी सोल्ड फॉर रुपीज 250। और एक बार सीजन निकल गया तो ही कैन ओनली सेल इट फॉर रुपीज 100, यानी कि कॉस्ट भी निकाल नहीं पाएगा, 150 रुपीज जो कॉस्ट है उससे भी कम में सेल करना पड़ेगा। इफ ही इज एबल टू सेल ओनली 1200 watches out of 1500 he has made in the season, then he has made a profit of how much? अगर 1200 वॉचेस को ही सेल किया है आउट ऑफ 1500 वॉचेस ही हैज मेड इन द सीजन, तो कितना प्रॉफिट होगा उस केस में? ओके, टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा? टोटल वॉचेस हैं 1500, टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू 30,000 प्लस 150 इंटू 1500, 50 into 15 225 followed by 3 zeros, 30,000 plus 225,000, this will be 255,000, this is total cost. Okay, okay, so टोटल कॉस्ट तो हमारा हो गया 2,55,000 और टोटल रेवेन्यू क्या आएगा? ही सोल्ड 1200 वॉचेस आउट ऑफ 1500 इन द सीजन, तो 1200 इंटू 250 एंड रिमेनिंग वॉचेस ही हैज टू सेल एट रुपीज 100। कितनी बच गई? 300, तो प्लस 300 इंटू 100, तो 12 इंटू 25 विल बी 300, तो 300,000 प्लस 30,000, टोटल रेवेन्यू विल बी 330,000। टोटल कॉस्ट वॉज 255,000, तो प्रॉफिट हमारा हो जाएगा डिफरेंस ऑफ देम विच इज 75,000। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next is, if he produces 1500 watches, what is the number of watches that he must sell during the season in order to break even? Break even यानी कि no profit no loss, NPNL, जितना कॉस्ट लगा है उतना ही रेवेन्यू चाहिए। तो given that he is able to sell all the watches produced, if he produces 1500 watches, what is the number of watches that he must sell during the season in order to break even? सारी वॉचेस सेल करनी है और ब्रेक इवन करना है, ओके।
सो लेट अस से कि n वॉचेस ही सेल्स ड्यूरिंग द सीजन. टोटल कॉस्ट आया था 255,000. So that must be total revenue as well. So n watches in the season, तो 250 n, remaining होगी 1500 minus n, and those must be sold at rupees 100. So 1500 into 100 will be 150,000. So 255k or 255,000 is equal to 150,000 plus 250 n minus 100 n, तो plus 150 n. सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 105,000 डिवाइड बाई 150, दैट इज इक्वल टू n. 0 से गया 0, 15 से गया 700 विल बी वैल्यू ऑफ n. ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा. दैट 700 वॉचेस ही मस्ट सेल एट द सीजन, तभी ब्रेक इवन होगा. उससे कम सेल करेगा तो ब्रेक इवन नहीं होगा. ओके ठीक है. अच्छा, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन करो तो ऐसे भी इस बात को सोच सकते हो, टोटल कॉस्ट हमारा 25,000 है. अब अगर वो सारी की सारी वॉचेस को 100 पे सेल करता है, ठीक है, इफ ही सेलिंग ऑल वॉचेस, ऑल 1500 वॉचेस एट 100 रुपीज, तो टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट हो पाएगा? 1500 इंटू 100, दैट विल बी 150,000. ठीक है, तो 150,000 रेवेन्यू एनी वे जनरेट होगा. ये तो तब भी जनरेट होगा जब वर्स्ट के सिनारियो में, जबकि वो सारी वॉचेस सेल करता है 100 रुपीज पे ही. ठीक है, एडिशनली उसको कितना चाहिए? टोटल 255 के चाहिए, यानी कि 105,000 एडिशनल चाहिए. और ये कब मिलेगा? जबकि वो सीजन में सेल करे. और सीजन में सेल करने पे कितना बेनिफिट है उसका? 150 रुपीज एक्स्ट्रा मिलता है. तो इक्वेशन बना के तो सॉल्व कर ही रहो, बट वैसे भी समझ में आना चाहिए कि 150 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा. जितनी वॉचेस में मिलेगा, हमें कितना चाहिए? एक्स्ट्रा चाहिए 105,000. तो बस आंसर आ जाएगा, डिवाइड बाई 150 कर दो यहाँ से, क्योंकि जो भी सीजन में वॉच सेल होगी उस पर 150 रुपीज एक्स्ट्रा मिलने वाला है. और एक्स्ट्रा हमें इतना ही चाहिए, 105,000. अगर ब्रेक इवन करना है तो इससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा. तो एक्जैक्टली 105,000 बाई 150, दैट विल 700. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Brishti went on an 8-hour trip in a car. Before the trip, the car had traveled a total of x kilometers till then, where x is a whole number and is palindromic. Palindromic यानी कि it reads the same reverse as well. So x remains unchanged when the digits are reversed. So digits will be somewhat like A, B, C, D तो नहीं, A, B, C, क्योंकि 5 डिजिट है, फिर से हमारा B, A होगा. A, B, C, B, A. तो चाहे ऐसे पढ़ो चाहे ऐसे पढ़ो, बात एक ही है. This is a palindrome. So at the end of the trip, the car had traveled a total of 26862 kilometers. 26862 kilometers, which is a palindrome. 26862 on both sides. So this number again being palindromic. If Brishti never drove at more than 110 km per hour, then greatest possible average speed at which she drove during the trip in km per hour was what? क्या वैल्यू होगा? ठीक है, तो एक अप्रोच तो है इसको सॉल्व करने का, जहाँ पे कि हम सॉल्व करके देख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है. बट बेस्ट अप्रोच क्या है, क्योंकि ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस को यूज कर लो. ठीक है, 8 आवर्स का टोटल ट्रिप था. तो 8 आवर्स ट्रैवल करने के बाद में रीडिंग इज 26862 किलोमीटर्स. और उससे पहले भी हमारा नंबर पैलिंड्रोमिक था. एवरेज स्पीड की वैल्यूज गिवन है फॉर 8 आवर्स. ठीक है, तो 90 इंटू 8 कर लो, निकाल लो. हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ग्रेटेस्ट पॉसिबल एवरेज स्पीड. तो स्टार्ट कहाँ से करोगे? स्टार्ट करोगे मैक्सिमम वैल्यू से. ये कैसा हो सकता है? एक से ज़्यादा ऑप्शंस में तुम्हें पैलिंड्रोम वैल्यू मिल जाए, बट जो लार्जर से वैल्यू मिलेगा वो हमारा आंसर होगा, बिकॉज हमें चाहिए ग्रेटेस्ट पॉसिबल एवरेज स्पीड. तो स्टार्ट करो 110 से. 110 इंटू 8 यानी कि 880 किलोमीटर्स द कार मस्ट हैव ट्रैवल्ड इन दिस केस. तो सब्ट्रैक्ट करोगे 880 फ्रॉम 26862 माइनस 880, तो कितना आएगा? 26,000 माइनस 18, तो 25,082. ठीक है, 25,082. क्या ये पैलिंड्रोम है? नहीं है. नेक्स्ट वैल्यू ले लो, 100 को ले लो. तो 100 के केस में सब्ट्रैक्ट करोगे 800, तो 26862 minus 800. This will be 26062. Yes, this is a palindrome. So answer will be option B, 100 kilometers per hour. Must be the average, greatest possible average speed of Brishti of the car. Okay, clear है? बेस्ट होगा ऑप्शन से जाने का. अदरवाइज क्या सोच सकते थे? अगर हम थोड़ा लंबे तरीके से सोचते हैं, ऑप्शंस तो रहेंगे ही, पर अगर हम और वैसे सोचें तो क्या सोचना पड़ेगा हमको? 26862 है रीडिंग आफ्टर द ट्रिप, एंड Brishti never drove at more than 110 किलोमीटर पर आवर, यानी कि मैक्सिमम स्पीड पॉसिबल इज 110. उससे ज़्यादा स्पीड तो हो नहीं सकता. तो मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल कितना हो सकता है? क्योंकि 8 किलोमीटर का ट्रिप है इन टोटल.
इंटू 8, मैक्सिमम 880 किलोमीटर्स। सो रीडिंग क्या हो सकता है, 26, अगर पूरा डिस्टेंस मैक्सिमम पे ट्रैवल किया 110 पे ट्रैवल किया तो 26862 माइनस 880, 25, एक सेकेंड, 25082 क्यों लिख दिया था, 25982 होगा, ठीक है, 25982 मस्ट हैव बीन द रीडिंग। ठीक है, इससे नीचे तो रीडिंग जा नहीं सकता है, तो इससे बड़ा ही वैल्यू होगा। अब 2592 अपने आप में पैलिंड्रोम तो है नहीं, तो इससे बड़ा नंबर चाहिए हमें जो कि पैलिंड्रोम हो, और स्मॉलेस्ट सच नंबर चाहिए, स्मॉलेस्ट सच नंबर, क्योंकि जितना इस नंबर के नियर होगा नंबर हमारा, उतना ही ज्यादा स्पीड होगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ग्रेटेस्ट पॉसिबल एवरेज स्पीड भी तो चाहिए। अब अगर नंबर पैलिंड्रोम है तो नंबर का फॉर्म मस्ट बी ए बी सी बी ए। सो इनिशियली अगर 25 सही नंबर होगा, 25,000 में ही होगा, तो इनिशियली 25 है, तो लास्ट में ऑल्सो शुड बी 52, बट 2592 के बाद में तो फिर हमारे पॉसिबल ही नहीं कि लास्ट में 52 है, क्योंकि इसके बाद में अब बस 18 नंबर्स के बाद में 26,000 आ जाएगा, यानी कि 25,000 समथिंग में तो आंसर नहीं है हमारा। ठीक है, ये तो क्लियर है, तो 26,000 में ही आंसर मिलेगा, और 26,000 में आंसर कब मिलेगा, जबकि 26 इनिशियल आ रहा है, तो लास्ट में 62 आना चाहिए और बीच में कोई वैल्यू आ जाए, तो 26 समथिंग 62, दिस मस्ट बी नंबर, और समथिंग में कोई भी वैल्यू आ सकता है, तो स्मॉलेस्ट सच नंबर कैन बी 26062, दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू यही पॉसिबल है। और जब ये वैल्यू होगा, दिस कैन बी द स्मॉलेस्ट नंबर जो कि पैलिंड्रोम होगा विद द गिवन कंडीशंस, यानी कि 800 किलोमीटर्स सब्ट्रैक्ट किया हमने 26862 में, तो 800 किलोमीटर चली है कार 8 आवर्स में, तो स्पीड हमारा हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बाकी इसके बाद के नंबर क्या होंगे, 26162, 26262, 26362 से लेकर 26762 तक, क्योंकि 862 तो टोटल वैल्यू है, तो यहाँ ये हमारी सारी पॉसिबल वैल्यूज है 0 से लेकर 7 तक, टोटल 8 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं स्पीड की। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, ठीक है। सो 8 हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज आ गई, और लार्जेस्ट वैल्यू इज 100 इन दैट केस। ओके, देखिए स्पीड 0 तो नहीं रहा होगा, इसलिए 2686 तो नहीं लोगे, कुछ तो स्पीड रहा होगा, कार चली है आखिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a right circular cylinder has a height of 15 units and a radius of 7 units. A rectangular solid with a height of 12 units and a square base is placed in the cylinder such that each of the corners of the solid is tangential, यानी टच कर रहा है tangentially to the cylindrical wall. Liquid is then poured into the cylinder such that it reaches the rim. यानी कि पूरा फिल कर दिया, पर फिल कब किया है, पहले राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर हमने एक रेक्टेंगुलर सॉलिड फिलअप किया है जो कि क्यूबॉइड होगा, रेक्टेंगुलर सॉलिड यानी कि रेक्टेंगल है उसका बेस और स्क्वायर बेस है और अल्टीमेटली हाइट है उसका, तो दिस इज अ क्यूबॉइड, रेक्टेंगुलर सॉलिड यानी कि क्यूबॉइड की बात कर रहा है। अब इनसाइड राइट सर्कुलर सिलेंडर हमने क्यूबॉइड फिट किया, क्यूबॉइड ऐसे फिट किया कि सच दैट दिस इज टचिंग, दैट क्यूबॉइड इज टचिंग द कॉर्नर्स ऑफ क्यूबॉइड इज टचिंग द सॉलिड, द सिलेंड्रिकल सॉलिड, यानी कि सिलेंड्रिकल सॉलिड का जो सरफेस हमारा कैसा है, सरफेस हमारा है सर्कुलर, तो उसको टच कर रहा है हमारा ये क्यूबॉइड। ठीक है, शेप कैसा होगा, ऊपर से देखो तो कैसा दिखेगा, टॉप व्यू कैसा होगा, क्योंकि हमें हाइट तो पता है बट हमें स्क्वायर बेस नहीं पता है, तो शेप विल बी समवॉट लाइक दिस, टचिंग द सिलेंड्रिकल सरफेस, है कि नहीं, तो दिस विल बी द शेप, और साइड लेंस इक्वल है क्योंकि स्क्वायर है, एंड दिस विल बी द डायमीटर, क्योंकि सेमी सर्कुलर बनने वाला है ऑलवेज राइट एंगल, तो डेफिनेटली डायमीटर है, डायमीटर निकाल पाओगे, ठीक है, क्योंकि दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, तो अगर ये 1 है, इफ दिस इज 1 दिस इज 1, तो दिस मस्ट बी √2, और हमें यहाँ पे क्या पता है, रेडियस हमारी 7 यूनिट्स है, डायमीटर क्या है 14 है, ठीक है, डायमीटर 14 है, तो यहाँ से हम साइड लेंथ निकल आएगा कि अगर डायमीटर 14 है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, बिकॉज √2 यूनिट्स इज 14, तो 1 यूनिट विल बी 14/√2, 14/√2, अदरवाइज मान लेते कि अगर साइड लेंथ हमारा ए है, तो ए और ए है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 14 स्क्वायर यानी 196, तो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 98, तो ए विल बी √98, ठीक है, या तो ऐसे देख लो या फिर ऐसे देख लो, 14/√2 दैट इज इक्वल टू वैसे √98, 7√2, ओके। फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अल्टीमेटली क्या करना है कि इसके अंदर हमने सिलेंडर के अंदर क्यूबॉइड तो है ही है, क्यूबॉइड के बाद में अब हमने इस पर लिक्विड पोर किया, तो लिक्विड हमारा बाकी बची हुई जगह होगी, जो वैकेंट स्पेस होगा उसको फिलअप करेगा, तो दोनों का वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और वॉल्यूम सिलेंडर विल बी पाई r² h, पाई
इंटू आर इज 7, तो 7 इंटू 7 इंटू एच इज 15 माइनस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा ए इंटू एच, और एच कितना है 12 यूनिट्स है, और ए हमारा √98 है, तो ए स्क्वायर इंटू 12, और ए स्क्वायर इज 98, इंटू 12, ओके। 7 इंटू 7 49 कॉमन आ जाएगा, और साथ में 15 में भी 3 आ रहा है, 12 में भी 3 आ रहा है, 3 को भी कॉमन ले लो, 49 इंटू 3 कॉमन आ गया, इनसाइड ब्रैकेट बचा हमारा पाई इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4, सो 147 इंटू 5 पाई माइनस 8, दिस मस्ट बी द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, 5 पाई माइनस 8, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्लियर है बात? ठीक है, ऑप्शन सी हमारा विल बी द आंसर इन दिस केस। Okay. Next question. The figure shown shows a circle of diameter AB and radius is 6.5 centimeter. If the chord CA is 5 centimeter long, then find the area of triangle ABC. Again, diameter AB. और जब भी कभी सेमी सर्कल दिखे तो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखना चाहिए, या कभी भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, कहीं सर्कल दिख रहा है, तो फिर वहां पे सेमी सर्कल का यूज होगा। ठीक है, सो ए बी इज द डायमीटर, सो ए सी बी क्या है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्वियसली। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है अपना, और ए सी की लेंथ कितनी है दी है 5 दी है, और ए बी कितना होगा, डायमीटर ए बी है, रेडियस 6.5 है, तो डायमीटर इज 13 एंड 5, तो दिस साइड मस्ट बी 12। खत्म हो गया सवाल, ए सी बी राइट एंगल ट्रायंगल है, और बेस एंड परपेंडिकुलर आर 5 एंड 12, तो एरिया वैल्यू 1/2 इंटू 5 इंटू 12, that is 30 square centimeter. Option A will be the answer. Okay. Next question. A cube of side 12 centimeter is painted red on all the faces and then cut into smaller cubes, each of side 3 centimeter. So what is the total number of smaller cubes having none of their faces painted? Total number of smaller cubes having none of their faces painted. Okay. तो कभी भी किसी भी केस में अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि हमने एक क्यूब को कट किया है इन पीसेस, ठीक है, और अगर हर एक डायमेंशन को इफ यू कट इनटू n पीसेस, ठीक है, इफ यू कट इनटू n पीसेस हर एक डायमेंशन को, तो इन दैट केस नंबर ऑफ पीसेस कितने बनेंगे हमारे, n क्यूब बनेंगे, टोटल पीसेस विल बी n क्यूब। ठीक है, और पेंट करने के बाद में कट किया है, तो पेंट तो सिर्फ आउटर सरफेस पे हुआ है, अंदर तो पेंट किया नहीं हमने, पेंट तो बाहर किया है। ठीक है, सो ऐसे केसेस में क्या होगा, जब तुमने छोटे छोटे क्यूब्स जो निकाले स्मॉलर क्यूब्स, तो इनमें से सम क्यूब्स विल बी पेंटेड ऑन 3 फेसेस, बिकॉज अपना जैसे रूम को समझो, तो रूम में क्या होगा, जो कॉर्नर फेस है तुम्हारा, वहां पे 3 सरफेसेज आर गेटिंग कनेक्टेड, तो जो कॉर्नर फेस जब पे जो छोटा क्यूब होगा, जब वो क्यूब निकलेगा क्यूब में से, लार्जर क्यूब में से, तो उस क्यूब पे 3 फेसेस विल बी पेंटेड, क्योंकि 3 फेसेस आउटर फेसेस एक्सपोज होंगी, तो वो पेंटेड मिलेंगी। ठीक है, तो या तो 3 फेसेस पेंटेड होंगी, और 2 faces will be painted, or 1 face will be painted, or 0 faces will be painted. So 3 painted faces will only be at the corners, or number of corners in a cube are 8, 4 on the top, 4 on the bottom. So 4 plus 4, 8 are smaller cubes which will be painted. ठीक है, जहां पे कि 3 surfaces पेंट मिलेंगी। अब जो एजेस होगा क्यूब का, इन एज वाले केस में 2 साइड्स पेंटेड होंगी, और एज पे कितना, अल्टीमेटली जो ऊपर वाला कॉर्नर है, भाई कॉर्नर को तो छोड़ना पड़ेगा ना, दिस कॉर्नर, क्योंकि यहाँ पे तो 3 फेसेस पेंटेड है, और ऐसे ही नीचे वाला कॉर्नर, तो बीच में तुम्हारे कितने बचे, टोटल n थे, क्योंकि n कट्स n-1 कट किए होंगे, तो n पीसेस में तुम्हारा n क्यूब्स निकले हैं एक साइड से। ठीक है, तो n-2 इन वन एज, और एजेस कितने होंगे इन अ क्यूब, एजेस आर 12, 4 हो गई हमारी वर्टिकल, एंड देन 4 ऑन द टॉप, 4 ऑन द बॉटम, तो 12 एजेस आर इन टोटल देयर। ठीक है, तो एजेस मल्टीप्लाइड बाई हर एक एज में n-2, so this will be equal to 12 into n-2, because 12 edges are there. इसके बाद में वन फेस पेंटेड वाले विल बी ऑन अ सरफेस इन द मिडिल, जो ना तो कॉर्नर पे है ना ही एज पे है, तो एक ऊपर से छोड़ा तुमने, एक नीचे से छोड़ा, एक लेफ्ट से और एक राइट से, तो n-2 into n-2, दिस विल बी n-2 होल स्क्वायर ऑन वन सरफेस, और टोटल सर्फेसेज होंगे हमारी 4 एंड 1 roof and 1 bottom, 6 surfaces, तो 6 into n-2 whole square, this will be painted on one face,
और लास्टली जीरो फेसेस पेंटेड विल बी इनसाइड, टोटली इनसाइड, तो कहीं से भी एक्सपोज नहीं होंगे, जो पूरी तरह से इनसाइड द क्यूब होंगे, दैट विल बी n - 2 होल क्यूब। हर साइड से तुम्हें दो दो छोड़ने हैं, तो n - 2 होल क्यूब विल बी दोज विद जीरो फेसेस पेंटेड। क्या ये क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स हैविंग नन ऑफ देयर फेसेस पेंटेड, यानी कि हमें चाहिए n - 2 होल क्यूब का वैल्यू। तो पहले तो n का वैल्यू निकालेंगे। 12 सेंटीमीटर वॉज द साइड लेंथ ऑफ द क्यूब, द लार्जर क्यूब, और स्मॉलर क्यूब्स को हमने गेट किया 3 सेंटीमीटर साइड लेंथ से। ठीक है, टोटल हमारा वॉल्यूम है 12 × 12 × 12, और जो क्यूब्स हमने बनाए हैं दोज आर 3 × 3 × 3। एक साइड में कितना है? 12 से 3 4 बने, तो 4 क्यूब, यानी 64 क्यूब्स होंगे इन टोटल, विच इज इक्वल टू 4 क्यूब, यानी कि n इज इक्वल टू 4 इन दिस केस, n इज इक्वल टू 4। हमें चाहिए स्मॉलर क्यूब्स हैविंग नन ऑफ देयर फेसेस पेंटेड, यानी कि दोज दैट वुड बी कंप्लीटली इनसाइड। तो 4 में से एक छोड़ोगे टॉप पे, एक छोड़ोगे बॉटम पे, वैसे ही हर जगह पे टोटल छोड़ोगे तो 4 - 2 होल क्यूब विच इज इक्वल टू 2 क्यूब, यानी कि 8 ऐसे हमें क्यूब मिलेंगे जहाँ पे कि जीरो फेसेस पेंटेड होगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। बाकी भी वैल्यूज ऐसे ही निकाल लेते हैं। 8 तो हो गए जो कि जीरो फेसेस पेंटेड होगा, वन फेस पेंटेड वाले कितने होंगे? 6 × n - 2 होल स्क्वायर, तो 6 × 2 स्क्वायर 24। सिमिलरली टू फेसेस पेंटेड वाले 12 × 2 24, और 8 तो हमेशा ही रहेंगे, थ्री फेस पेंटेड वाले तो हमेशा ही 8 रहेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि n का वैल्यू क्या है, वो तो हमेशा ही 8 होंगे, कांस्टेंट होंगे। क्या क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If n is any odd number greater than 1, then n into n square minus 1 is always divisible by which of the following numbers? n into n square minus 1. So n square minus 1 is n minus 1 into n plus 1. Basically, these are three consecutive numbers, n minus 1, n and n plus 1. और n एक odd number है, ये भी mentioned है कि n is odd number greater than 1. So n is basically odd. अगर n odd हो गया तो n minus 1 will be even, और n plus 1 that will also be even. है कि नहीं? ठीक है, तो n minus 1 and n plus 1 are two consecutive even numbers. दो consecutive even numbers हैं, और अगर दो consecutive even numbers कभी भी लोगे तो उनमें से कोई एक must be divisible by 4. एक होगा जो कि 2 से डिविजिबल होगा, और एक मस्ट बी डिविजिबल बाई 4, क्योंकि दो कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर्स हैं। तो इधर n - 1 विल बी डिविजिबल बाई 4 और n + 1 विल बी डिविजिबल बाई 4, तो 1 विल बी डिविजिबल बाई 2 एंड वन ऑफ देम विल बी डिविजिबल बाई 4। तो 2 × 4 से तो पक्का ही डिविजिबल होगा। और फिर सिंस दीज आर थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, तो वन ऑफ देम मस्ट बी डिविजिबल बाई 3 एज वेल, तो मल्टीप्लाई बाई 3, 2 × 3 4 × 3 ये 24 से हमेशा ही डिविजिबल होगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो ऑप्शंस वैल्यूज लेके भी सॉल्व कर सकते हो कि n एक ऑड नंबर है, ग्रेटर देन 1 है, तो n की कोई वैल्यू ले लो, फॉर एग्जांपल 3 ले लिया, तो n × n - 1 × n + 1 यानी 2 × 3 × 4, 24 से डिविजिबल वैसे ही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू ले लो, 5 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 120 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब कोई वैल्यू लोगे हमेशा 24 से डिविजिबल जरूर मिलेगा, और वैल्यू हमेशा स्मॉलेस्ट लेना है, क्योंकि लार्जर वैल्यू में हो सकता है तुम्हें 48 से डिविजिबल मिल जाए, बट वहां से कंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि 24 से हमेशा होगा, 48 से कभी हो सकता है, 96 से कभी हो सकता है, बट 24 से ऑलवेज होगा। दैट इज वाई आंसर विल बी ऑप्शन ए एंड नॉट ऑप्शन बी और सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If ABCD is a square and BCE is a equilateral triangle, what is the measure of angle DEC? ABCD is a square, तो all sides are equal. Then BCE is a equilateral triangle, यानी कि all sides of BCE also equal, तो BC will be equal to BE as well as CE. And we need to find out angle DEC. What will be this angle? जो triangle DCE में DC is equal to CE बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि DC हमारा साइड ऑफ स्क्वायर है और BC भी साइड ऑफ स्क्वायर है और BC साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल भी है, तो BC इज इक्वल टू CE, तो DC इज इक्वल टू CE, और DC इक्वल टू CE हो गया तो एंगल्स अपोजिट टू देम विल आल्सो बी इक्वल, यानी कि एंगल DC ये नहीं D, एक सेकंड, DC का अपोजिट एंगल क्या आएगा? दैट विल बी CED या DEC, तो एंगल DEC विल बी इक्वल टू एंगल EDC, दोनों एंगल इक्वल होंगे। और थर्ड एंगल हमें पता ही है, बिकॉज दिस इज स्क्वायर, तो दिस एंगल इज 90, और इक्वेटर एंगल है तो ये एंगल 60 होगा, दिस इज 60, दिस इज 90, तो थर्ड एंगल हमारा 150 है, ये एंगल 150 हो गया, तो दिस एंगल थीटा, दिस इज थीटा, तो 2 थीटा प्लस 150 दिस इज इक्वल 180 इन ट्रायंगल DCE। सम तो एंगल्स का 180 होगा,
तो 2 थीटा हमारा 30 आ गया, तो यहाँ से थीटा हमारा 15 डिग्री आ गया। ऑप्शन ए विल बी आंसर। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द एक्स satisfying log of 4 on the base 3 minus 2 times log of root of 3x plus 1 on the base 3 that is equal to 1 minus log of 5x minus 2 on the base 3. वन माइनस लॉग ऑफ 5x माइनस 2 ऑन द बेस 3। सारे के सारे केसेस में लॉग बेस 3 में आ रहा है, तो 1 को भी कन्वर्ट कर दो। 1 को लिख सकते हैं क्या, 1 को लिखा जा सकता है लॉग ऑफ 3 ऑन द बेस 3। log a minus log b is log of a upon log of b, so you can write this as log of 4 upon, बट पहले इस 2 को इनसाइड द लॉग लेके जाओगे और 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट ऑफ 3x प्लस 1 स्क्वायर्ड विल बी इक्वल टू 3x प्लस 1, सो log of 4 अपॉन 3x प्लस 1 ऑन द बेस 3 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और सिमिलर राइट हैंड साइड में हो जाएगा log ऑफ a माइनस बी, सॉरी log a माइनस log b दैट इज इक्वल a बाई बी, तो log ऑफ 3 अपॉन 5x माइनस 2 ऑन द बेस 3। दोनों केसेस में क्योंकि लॉग का बेस इक्वल है तो वैल्यूज भी इक्वल होंगी इनसाइड द लॉग, यानी कि 4 अपॉन 3x प्लस 1 दिस विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 5x माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 5 20x माइनस 8 इज इक्वल टू 9x प्लस 3, so 11x will be equal to 11 and hence x will be equal to 1। आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 1। बट जब भी लॉग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो हमेशा लास्ट में चेक करना है कि क्या डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है। डोमेन क्या होना चाहिए, क्योंकि लॉग के अंदर किसी भी वैल्यू का अगर हम लॉग ले रहे हैं तो दैट मस्ट ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू, और स्क्वायर रूट भी है साथ में, तो 3x प्लस 1 मस्ट ऑलवेज बी, भाई एज पर स्क्वायर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट लॉग ले रहे हैं इस वैल्यू का, तो दिस मस्ट बी स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ओके, ठीक है, तो 3x प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो x इक्वल टू 1 पे तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। सिमिलरली 5x माइनस 2 विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0, और x इक्वल टू 1 पे ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों डोमेन हमें सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो यस आंसर विल बी x इक्वल टू 1। अगर सेटिस्फाई नहीं करते तो आंसर होता नॉट दीज इन दैट केस। ओके, सो दीज आर ऑल क्वेश्चन इन दिस सेशन। आई बिलीव जो भी डिस्कस है सारी बातें समझ में आई होंगी, और अगर सेशन में सारा कुछ क्लियर हुआ है तो मेक श्योर टू गिव अ फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो लाइक दिस सेशन। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।